Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning.
Am I audible now? Yes, sir. मैंने तो भी ऑन किया था, लग रहा गलती से ये डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बोले जा रहा हूँ और ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि when our computer was not connected, it was safe. But now when we have connected our system through internet, now hacker or any other person, unwanted person may find a path through internet to connect to your system. ठीक है, इस तरह का हैकर को जो है वो एक कनेक्शन मिल सकता है जिसमें वो आपके सिस्टम तक पहुंच जाए। बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग आईपी एड्रेसेस। ठीक है, हमारे पास अपना कुछ आईपी एड्रेस है। इस सिस्टम का भी अपना आईपी एड्रेस होगा। when you are connected through internet, your IP address is mentioned there. Okay. So if this hacker want to connect to your address, then he can use some tools to access your system. ठीक है, वो आप सिस्टम को किसी तरह से हैक करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड, इट इज पॉसिबल। But if you remove the link or if you remove the internet, then there's no way a hacker can access your system. But in today's world, we are connected all the time through internet. ठीक है, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, आपका डेस्कटॉप कनेक्टेड है, आपका मोबाइल फोन कनेक्टेड है, आपकी होम अप्लायंसेस कनेक्टेड है। यू हैव कनेक्टेड योर lights, fans, ACs, TV, etc. through internet, and you are controlling. And this is beneficial also. You can control your AC or you can control your lights or fans through your phone. Instead of switching on and off, you can control them through your phone। ठीक है, तो आप अपने फोन से इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक advantage मिलता है। बट सिंस दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, so they are also vulnerable to be controlled by some hacker or intruder। कोई भी उसको जो है वो हैक कर सकता है। हैक करने में क्या करेगा, आप ऐसा तो नहीं कि उसमें एसी में से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, बट एसी कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ, और इस तरह की जो है वो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सो ये प्रॉब्लम आपकी कब आ रही, व्हेन यू आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। अगर आप सिस्टम को कनेक्ट नहीं करते हैं, देन यू आर सेफ। बट इन टूडेज वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू बी disconnected from the world, so you have to be connected, and when you are connected, then you are vulnerable to the web attacks or these web security issues. So you have to be connected and be secure. So for that purpose we are studying this cyber security, how we can make our system safe। Okay. We discussed it yesterday that nowadays we are living in a digital era, ठीक है, in which our private information is more vulnerable as than even before। ठीक है, जितनी आपकी पहले थी, क्योंकि पहले आपके पास जो information थी, that was not a digital information, but nowadays most of your information is in digital form, stored in computer। ठीक है, आपकी सारी information जो है वो कंप्यूटर पे, आपकी बैंक की information, ठीक है, आप देखें तो आपने अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर है, आपके आधार की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर है जो डिजिटल है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें सिस्टम में स्टोर है, या आप कह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू आपको ये मिली हुई है। आप कोई सर्टिफिकेट देखें, ऑल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, वो भी आपके डिजिटल फॉर्म में है। आपकी मार्कशीट जो है वो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, मार्कशीट जो है वो डिजिटल फॉर्म में है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन पहले सब हार्ड कॉपी की फॉर्म में हुआ करती थी, अब वो सब इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में भी, और हार्ड में फिजिकली इंफॉर्मेशन स्टील करनी पड़ती थी। अगर कोई आपकी चेक बुक यूज करना चाहता है, तो द पर्सन नीड टू स्टील योर चेक बुक, या एटलीस्ट अ चेक, blank check, and then the person can withdraw money from your account।
But in case of internet banking or digital banking, only information needed is your account number and your PIN number. If it's stored somewhere in your computer, then any person getting access to your system can access your bank account or any other confidential information. आपका आधार नंबर क्या है, आपका DL नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, different documents can be accessed from your system. So that's why our system or our information is more vulnerable than ever before. ठीक है, रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपके पास पहले इतनी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में नहीं थी, और थी तो आप कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, तो कुछ आपकी इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर किसी कंपनी के हिसाब से देखें तो कुछ उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मिलिट्री के हिसाब से देखें तो कुछ आपकी जो है वो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। बट अगर साइबर अटैक होता है तो वो सब इन्फॉर्मेशन जो हैकर्स है उनको मिल जाती है। And hackers can misuse the information. They may sell to enemy country or any terrorist organization to make attacks. तो इस तरह की आपकी जो है प्रॉब्लम सब ज़्यादा हो गई कि आप जो है वो अपने सिस्टम को इस तरह से अनसिक्योर फॉर्म में नहीं रख सकते। सो यू हैव टू मेक सम अरेंजमेंट टू मेक योर सिस्टम सिक्योर, योर डिजिटल डेटा सिक्योर। साइबर अटैक्स आपकी जो है वो इंटरनेशनल कंसर्न हो गए, इसी वजह से हो गए कि आपका ऐसा नहीं, हैकर्स आर नॉट लिमिटेड विद इन अ बाउंड्री। आपका इंटरनेट जो है वो बाउंडेड तो है नहीं, आप कहीं भी बैठे हो, यू कैन एक्सेस एनी सिस्टम इन द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया में कोई सा भी जो है वो सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। तो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना नाउ कि आपके जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो डिफरेंट सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके इंफॉर्मेशंस को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। As the volume of cyber attack grows, companies, organizations, especially those that deal information related to national security, कभी भी बात बताता जो नेशनल सिक्योरिटी यानी आपकी मिलिट्री इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, या हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं किसी कंपनी के। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैकर्स। सो दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी सिक्योर। So these are goals of cyber security. Cyber security is to protect information that from being stolen, यानी आपको उसकी चोरी होने से बचाना है। ठीक है, या कंप्रोमाइज यानी आपके जैसे पासवर्ड है। ठीक है, अब चोरी होने का मतलब ये तो नहीं कि पासवर्ड आपके पास से चला गया, बट इफ योर पासवर्ड इज कंप्रोमाइज्ड, किसी को और दूसरे पर्सन को भी मालूम हो गया, इट मीन्स योर पासवर्ड इज कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्रोमाइज हो गई। अब आप जो है यू आर मोर वल्नरेबल। अगर कोई पर्सन उसको यूज करना चाहे या उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी कैन बी मेजर्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ थ्री गोल्स। आपके कम से कम ये तीन गोल्स उसमें रहेंगे: प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा, प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, एंड promote the availability of the data for authorized users. So confidentiality, integrity, and availability of the data from authorized users. तो ये आपके पास तीन गोल्स हैं इसके, जिसको हम शॉर्ट में CIA बोल देते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। यानी आपका डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, यानी कि यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग चेंज्ड, और अवेलेबिलिटी कि आपका डेटा जो है वो इट रिमेन्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट और ऑन योर सिस्टम। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको मेंटेन करनी है। दिस इज CIA। ठीक है, तो CIA को कभी कभी AIC से भी रिप्लेस कर देते हैं कि CIA से कन्फ्यूजन होता है कि आपकी अमेरिकन जो एजेंसी है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA, सो उससे कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से इसको CIA की जगह AIC भी लिख देते हैं। वर्ड्स वही है: अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो AIC या CIA जो है वो इसको जनरली यूज करते हैं। ठीक है,
The CI triad is the security model that is designed to guide policies for information security within premises of an organization or कंपनी। ये आपके एक तरह से सिक्योरिटी मॉडल है कि आपको क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है। यू हैव टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपका डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। इंटीग्रिटी, डेटा इज सेम। इंटीग्रिटी से मतलब ये कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वही डेटा है, ठीक है, इट हैज नॉट बीन चेंज। तो उसके लिए जो है डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं कि आपका डेटा जो है वो मॉडिफाई नहीं हुआ है, इट्स इंटीग्रेट, द डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन, ठीक है। तो आपको इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन करनी है और अवेलेबल रहे डेटा। यानी आप अगर किसी कंपनी में हैं तो आपका डेटा किसी भी सिस्टम पर सपोज, सो इट शुड रिमेन अवेलेबल। ऐसा ना हो कि किसी हैकर ने उस सिस्टम को एक्सेस किया और वो डेटा का पाथ सपोज चेंज कर दिया। नाउ द डेटा इज नो मोर accessible, maybe data is still there but its path has been changed and it's no more available to the users। जो यूजर्स हैं कंपनी के उनको डेटा जो है वो नहीं मिल रहा है, सो डेटा की अवेलेबिलिटी जो है वहां पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक सिक्योरिटी मॉडल है जो कंपनीज जो है इस बेसिस पे डिजाइन करती हैं। एआईसी इस वजह से करते हैं कि सीआईए से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। The CIE criteria are one of the most that organizations and companies use when they have installed a new application। अगर कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो है इस क्राइटेरिया को जरूर फॉलो करते हैं। क्रिएट अ डेटाबेस, अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं या डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, और गारंटिंग एक्सेस टू सम डेटा, या किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तब ये क्राइटेरिया जो है जरूर फॉलो किया जाता है। For data to be completely secure, all these security goals must come into effect। आप अगर अपने डेटा को completely secure करना चाह रहे हैं, then all of these goals must be implemented। Uh, these are the security policies that all work together and therefore can be wrong to overlook any of the policies। आपके पास तीन पॉलिसी आप कि कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटेनेबल, इंटीग्रिटी से थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो गया आप, यानी आपका डेटा जो है वो चेंज हो गया, इट्स नो मोर सेम डेटा। इफ डेटा इज चेंज देन इट्स एज बैड एज लॉस्ट, ठीक है। ये आपका डेटा जो है वो लॉस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं। अगर आपका डेटा इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन नहीं रहती है, ठीक है, तो यू आर नॉट श्योर कि डेटा आपका सेम वही है या चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे आप अगर कोई चेक है, ठीक है, और चेक में ओवर राइटिंग हो, देन बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट ओवर रिटन चेक्स बिकॉज its integrity is doubtful। It has been overwritten by the original owner of the check, or it has been modified at a later stage। ये तो वो आपकी इंटीग्रिटी जो है वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कंपनीज उस चेक को जो है एक्सेप्ट नहीं करती हैं, कंपनी का बैंक्स। So this is about confidentiality। Confidentiality is roughly equivalent to privacy and avoid unauthorized disclosure of information। ठीक है, confidentiality आपकी ये चीज़ है कि आपका डेटा जो है वो प्राइवेट डेटा है, पर्सनल डेटा है, एंड unauthorized disclosure of information should be avoided। कि आपका कोई unauthorized person जो है should not be able to get access to your information। ठीक है, आपके जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, आपने स्टोर कर रखी है, ठीक है, बट यू डोंट वांट टू शेयर इट। you will use your information as per your need but you don't want any other person to access your information। so this is the confidentiality। ठीक है, कि आप जो है अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डिसअलाउ कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग ऑफ डेटा, ठीक है, आपका डेटा प्रोटेक्शन जो है वो इसमें आएगा। प्रोवाइडिंग एक्सेस फॉर दोज हु आर अलाउड टू सी इट, और जो देख सकते हैं उनको परमिशन भी होनी चाहिए। सी इट वाइल डिसअलाउइंग अदर्स फ्रॉम लर्निंग एनीथिंग अबाउट इट्स कंटेंट, और जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं उनको किसी तरह की एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। इट प्रिवेंट एसेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीचिंग द रॉन्ग पीपल while making sure that right people can get it। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है,
If a teacher has designed a question paper, then it's confidential until unless the exam is given to the student. ठीक है, आपका एग्जाम पेपर जो है वो तब तक कॉन्फिडेंशियल है जब तक कि एग्जाम की डेट नहीं आ जाती और स्टूडेंट को नहीं दे दिया जाता है। उससे पहले उसे जो है वो ऐसा नहीं कि अब जो इन्फॉर्मेशन है या क्वेश्चन पेपर कोई भी एक्सेस नहीं करेगा। जो टीचर है, द टीचर इज एक्सेसिंग दैट इन्फॉर्मेशन, बट नो अदर पर्सन इज अलाउड टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, so it prevents essential information from reaching to wrong people। ठीक है, और राइट पीपल के पास पहुंच जाए, ये चीज आपको यहाँ पर उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी में इम्प्लीमेंट करनी है। डेटा इंक्रिप्शन इज गुड एग्जांपल ऑफ टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। डेटा इंक्रिप्शन करते हैं उसका पर्पस भी यही होता है। यू हैव encrypted your data, now if any unauthorized person has accessed your data, but that unauthorized person may not be able to understand the meaning of that particular data। Okay, so your data's confidentiality is maintained। Okay, on the other hand, when the encrypted data reaches to the destination, it will be decrypted and then it can be read again। So this was confidentiality। Then integrity, integrity refers to the method for ensuring that data is real। ठीक है, ये आपका जो है वो टर्म इम्पोर्टेंट है, डेटा इज रियल। ठीक है, डेटा इज रियल का मतलब क्या है? व्हेन यू आर हैविंग फिजिकल कॉपीज ऑफ डेटा। ठीक है, आपके पास अगर फिजिकल कॉपी है डेटा की, सपोज दिस इज योर मार्कशीट, योर नेम इज रिटन हियर, रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे हुए हैं क्या, 80 आउट ऑफ 100 हैं या 90 आउट ऑफ 100 हैं। ठीक है, या 65 आउट ऑफ 100 हैं। अब ये जो 65 थे, ठीक है, इसको किसी ने 85 बना दिया। ठीक है, आपके ओरिजिनल मार्क्स थे 65/100, आपने इसको थोड़ी कलाकारी करी और इसे 85/100 कर दिया अपनी मार्कशीट में। ठीक है, तो आपको देखने में लग रहा है कि इट इज एज गुड एज ओरिजिनल। देखने में जो है कहीं से मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपने डेटा को जो है वो मॉडिफाई किया है, बट इट्स इंटीग्रिटी इज वॉइड। ठीक है, आपने डेटा जो है वो, अब जो डेटा था इट्स नॉट रियल। ठीक है, आपका डेटा जो है वो चेंज हुआ है। द डेटा इज नॉट रियल, द डेटा इज नॉट एक्यूरेट, someone has accessed and changed it। तो अब आपका डेटा जो है वो रियल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। सो दिस इज टू एंश्योर दैट डेटा इज रियल। यहाँ पर आप जो इंटीग्रिटी को हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? यू हैव टू मेक श्योर दैट डेटा इज रियल एंड एक्यूरेट एंड सेफगार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर मॉडिफिकेशन। और कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसमें जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। अगर मॉडिफिकेशन हो भी रहा है, देन द पर्सन शुड बी एलिजिबल फॉर दैट पर्पस। ठीक है, अगर टीचर ने मान लिए एंट्री गलत की थी तो मार्कशीट में करेक्शन हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट केस। वहां पर आपकी डेटा की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन्ड है। बट इफ स्टूडेंट ऑन its own mark sheet is making some kind of changes, then integrity is not maintained। ठीक है, तो अगर टीचर कर रहा है, वो ऑथराइज पर्सन है, या जो टेबुलेटर है जो आपकी मार्कशीट बना रहा है, ठीक है, अगर उसने चेंजेस किए हैं, पहले बनाई थी मार्कशीट, उसमें कुछ गलती निकल आई, ठीक है, या मिस टाइप हो गया, 65 का 85 टाइप हो गया, देन इट कैन बी करेक्टेड बाय द टीचर इटसेल्फ। दैट इज द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर ओरिजिनल ऑथर उसको चेंज कर रहा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उसको चेंज कर रहा है, स्टूडेंट इज नॉट सपोज टू मॉडिफाई द मार्क्स ऑन द मार्कशीट। ठीक है, तो उसको अपने हाथ से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रखने के लिए इस चीज़ को इंश्योर करना है, डेटा इज रियल, डेटा इज
accurate and has been safeguarded again from unauthorized user modification. ठीक है, ये चीजें इसमें आपको मेंटेन करनी है. It is the property that information has not been altered in an unauthorized way. आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी गलत तरीके से मॉडिफाई नहीं की गई है. एंड दैट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज जेन्यून. ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन जहाँ से आ रही है वो सोर्स आपका इंफॉर्मेशन का वो जेन्यून सोर्स है. इट इज टू बी मेंटेन्ड. ठीक है, ये आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखना है. अवेलेबिलिटी, ये आपका तीसरा जो है वो एक जिसको हम बात कर रहे हैं CIA उस ट्रायड में जो है थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, अवेलेबिलिटी. एक तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, और अवेलेबिलिटी उसकी जो है वो मेंटेन करनी है. अवेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल एंड मॉडिफाइबल इन अ टाइमली फैशन बाय दोज ऑथराइज्ड टू डू सो. ठीक है, जो इस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उनको इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है एंड मॉडिफाइबल है एंड इन अ टाइमली फैशन. ठीक है, टाइम से वो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, इन अ टाइमली मैनर. ठीक है, जिस वक्त उनको जरूरत थी उसी वक्त उसको एक्सेस कर सकते हैं. अब ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड और रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होना है. अब जो रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम पर डेटा अवेलेबल नहीं कि हु इज द विनर. ठीक है, इफ दिस डेटा इज स्टोलन बाय सम हैकर देन maybe there are 3 or 4 contestants, but the DM will read the name of winner or declare the winner, and he will read from some document. If that document is being forged, ठीक है, या if that document is removed from the location, आपका जब वो इंटरनेट पे आपको इन्फॉर्मेशन आई DM को कि हाँ ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो जीत गया है, इसका अनाउंसमेंट करना है. अनाउंसमेंट से पहले भी जो अथॉरिटी है वो उस चीज को इंश्योर करे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है. ठीक है, एंड इफ DM or whoever is the concerned authority, if that person is trying to access the information and at this moment if this information is not available, the hacker has removed the information. मान लिया हो सकता है कि जो लूजिंग कैंडिडेट है उसने सिस्टम को हैक करवाया और उसने वहां से उस इंफॉर्मेशन को ही गायब कर दिया कि कौन जीता है. Now, the DM cannot declare the result until he has satisfied himself कि भाई जो है वो who is the winner, इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है हमारे पास आना चाहिए. वो डॉक्यूमेंट आपने वहां से या जो हैकर है या जो लूजिंग कैंडिडेट है उसने वहां से जो है वो गायब करवा दिया. ठीक है, तो इस तरह का केस हो सकता है. तो यहाँ पर आपको टाइमली मैनर में भी चाहिए. जिस वक्त उसके डिक्लेरेशन का टाइम था आपने उसको वहां से उस वक्त हटा दिया, आप आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उसको वापस डाल रहे हैं. सो द इंटीग्रिटी विल बी डाउटफुल कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो बीच में गायब हुआ था और इसमें इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं है, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन नहीं है, एंड द डॉक्यूमेंट मे बी फोल्ड और मे बी मॉडिफाइड. तो उसमें बहुत सारे फिर सवाल उठ सकते हैं. सो दिस इज द नीड ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा. जो डेटा जिस टाइम अवेलेबल होना चाहिए उस वक्त वहां पर आपको अवेलेबल उसे शो करना है, या जो यूजर्स हैं जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं उनको आपको डेटा जो है वो अवेलेबल कराना है. Now these are tools for confidentiality. I think I will discuss these tools on the next one. आज जो है वो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ. आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी. ओके, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. सर बैक का क्या सीन है? क्या? बैक वाले पेपर को सर बैक वाले पेपर का क्या सीन है? मैथ कौन सा बैक पेपर? सर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ. कौन सा पेपर? सर पेपर के नाम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ होगा. अच्छा फर्स्ट सर सेमेस्टर उनके कब से फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ उनका ऑनलाइन
तो अब ऑनलाइन उनका होगा जैसे या भी फिर होगा ऐसे वैसे आपका भी ऑफलाइन? होगा, जैसे उनके एग्जाम्स ओके होंगे वैसे ही आपके भी होंगे। मेरे ख्याल से शायद ओके मई के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। ओके सर। आपके एग्जाम से पहले शायद फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू। Everybody has marked the attendance. You may disconnect now.